is basically a big efforts, and obviously not only the effort but the sensitization effects are also here. So not only we people as a university are working in this direction, but there is a great focus of the central government into the field of innovation. The research is there, and this innovation and research only comes from the great ignited mind, which are the students. Our number of the peoples are working at the different job locations, different type of priorities are there. We are the teachers, and obviously some of them are the professionals. They will be working in some industries, some outside world there. So all of these things comes together, and it is being initiated at the very first, which is the basically the student part. So if at this particular stage and at this age in which you are studying, if you have a certain mindset in which you feel that innovation is very important for you, an understanding of innovation, what exactly the innovation term means, then exactly that is gonna to convert your mindset, and wherever you will be working, you will be definitely creating a new innovative ideas and things. Because this innovation is a basically a kind of a mentality. It's not basically a kind of a thing which is just put on a table and pick it up. So first of all, I would like to understand that my audiences, especially the student, are comfortable in which language, because session is more important to understanding. Is not related with the language, because now the NEPs also tell like your student must be very much comfortable in the understanding and delivering their ideas and the thoughts in whatever the language is there. तो भाषा का कोई बंधन नहीं है, परंतु जितने भी समय के लिए आप लोग फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यू पीपल आर हियर, यू शुड हैव अ डेफिनेटली ग्रेट फोकस ऑन द innovation. You should have a great focus on the creativity. You should have a proper understanding of this. So under this all situation, you need to understand that what is innovation and the creativity is there, and what is the role of an innovation ambassador, and how the institution innovation council is helping students to reach to a certain wonderful level. This is also good for a student and as well as the for society, for the company you will be working, for the nation you will be working. So it is all about related with the correlation, and all are things correlated. तो भाषा ठीक है सर, थैंक यू सो मच. बाइलिंगुअल प्रायोरिटी ठीक है, थैंक यू सो मच. तो मैं बाइलिंगुअल में जाऊंगा मैं अपने बच्चों के लिए, और कोशिश ये करूंगा कि यहाँ पे जितने भी मेरे छात्र बैठे हुए, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो आज जब यहाँ से उठें और सेशन को उठें तो उनके दिमाग में ये माइंडसेट में चेंज आना चाहिए, ये फील आना चाहिए कि अगर हम यहाँ हमें आके हमारे रेगुलर क्लासेस के बाद हमें यहाँ बिठा दिया जाता है, और बिठाने के बाद में हमसे कहा जाता है 1 घंटा बैठ जाओ, जो कि एक तरीके की क्लास जैसी लगती है, यहाँ से कुछ अलग है. इसके बाद विचार बदलना चाहिए, थॉट प्रोसेस बदलना चाहिए, चेंजेस आने चाहिए. दिस इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन एंड फॉर व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. तो जैसे बच्चों हम लोगों ने बात की है, जो इनोवेशन जो वर्ड है, ये इनोवेशन वर्ड कोई एक नया वर्ड नहीं है जो आप स्कूल और कॉलेज में जाने के बाद आपको पता चलता है. ये इनोवेशन तब से है जब से हमारी एग्जिस्टेंस है, जब से हमने एग्जिस्ट करना स्टार्ट किया, जब से ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस है, तब से ये वर्ड इनोवेशन. हर वो चीज जब नई तरीके से और बेहतरी के साथ की जाती है, टू मेक इट बेटर, जब भी हम किसी चीज को करते हैं टू मेक इट बेटर, दैट इज कॉल्ड एज अ इनोवेशन. और ये इनोवेशन केवल किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स के हाथ में नहीं है, या किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री में नहीं है, या किसी बड़े ऐसे बिजनेस के अंदर नहीं है. ये रिसर्च एंड इनोवेशन आपकी डेली लाइफ में भी है. सिंस मॉर्निंग टू टिल नाइट, आप सुबह उठने से रात को सोने तक आप जब जागते हो, जब आप एक साइकिल चलाना सीखते हो, साइकिल चलाने का एक नया तरीका सीख लेते हो जिससे आपकी बैलेंसिंग टर्निंग ज्यादा अच्छी होती है, दिस इज कॉल्ड एज अ इनोवेशन. ये इतना आसान है इनोवेशन. आपके घर में आपके पेरेंट्स, स्पेशली आपकी मदर, जब आपके लिए फूड कुक कर रही होती है, खाना बना रही होती हैं, तो जब उस खाने के अंदर अपनी क्रिएटिविटी ऐड करती हैं, और जो खाना आज आपने खाया उससे बेहतर खाना, उससे अच्छे फ्लेवर का खाना जब आपको कल खिलाती हैं, अगले दिन खिलाती हैं, तो दैट इज व्हाट इनोवेशन. ये इनोवेशन है. और ये इनोवेशन जो क्रिएट कर रहा है वो क्रिएटर है, और जो इनोवेशन की नॉलेज को ट्रांसफर कर रहा है वो इनोवेशन एम्बेसडर है. तो हमारा जो ब्रॉड लेवल पे जो टॉपिक है वो है इनोवेशन एम्बेसडर का. मैं अपनी यहाँ पर कुछ स्लाइड भी शेयर, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया, समझाया कि किस तरीके से ये इनोवेशन एम्बेसडर का रोल यहाँ पे क्रिएट होने वाला है, इनोवेशन का मतलब क्या है, इनोवेशन हमें हर जगह दिखता है, और हम कैसे अपने आप को अगर फील करें तो एवरीडे लाइफ वी आर इनोवेटिव. हम हर दिन हर समय कहीं ना कुछ इनोवेशन कर रहे हैं. हम अपनी राइटिंग को भी सुधारते हैं,
उसको भी अलग तरीके से पेंसिल को पकड़ना जब सीखते हैं तो वो भी एक इनोवेशन का पार्ट होता है। आज मैंने पेंसिल को इस तरीके से पकड़ा है ना, आई वुड बी एबल टू राइट बेटर, जब उससे अच्छा कर पा रहा हूँ, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इनोवेशन। ये भी एक इनोवेशन का ही एक हिस्सा होता है। तो यहाँ मैं अपनी स्लाइड शेयर करूंगा, अगर आपको विजिबल है तो आप मुझे बताइएगा। Yes, sir, it is visible. ठीक सर। आई कीप मूविंग इट, और अगर ये मूव भी करती है तो भी आप मुझे एक बार यू जस्ट प्लीज इंडिकेट मी कि वेदर इट इज मूविंग और नॉट। इट्स मूविंग। ये स्लाइड मेरा मूव कर रहा है। No, sir, it's not moving. So please go to second slide. It is slide 1. हाँ, that's why I'm asking whether it is moving or not moving. Because somewhat we find such kind of a difficulty in Google Meet. कई बार ऐसा आता है देखने में। It's not moving. Yes, now it is moving, sir. It is slide number 2. What is creativity? Yes, sir. What is creativity? So I'll try to show you here itself and making it zoom, because so what is creativity and understand, अगर इनोवेशन की बात करते हैं तो इनोवेशन जब कभी भी स्टार्ट होता है तो इट स्टार्ट्स विद द वर्ड ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी कहीं भी है, एट एवरी पॉइंट एट एवरी प्लेस यू फाइंड द क्रिएटिविटी इज देयर। कहीं भी आप देखेंगे बहुत सारी डेफिनेशंस आपको मिलेंगी क्रिएटिविटी की, बट द क्रिएटिविटी इज नॉट समवॉट रिलेटेड इन द टर्म ऑफ लैंग्वेज। ये कहीं भाषा में नहीं फंसी हुई है, ये थॉट्स में फंसी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, ये फोटोग्राफ कोई टेक्निकल इन्वेंशंस नहीं है, सिर्फ किसी भी चीज का कंपैरेटिवली टू मेक इट अ न्यू लुक विच गिव्स यू फील्स बेटर, दैट इज व्हाट द क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी प्रोडक्टिव तब हो जाती है जब वो आपके एनवायरनमेंट को सूट करने लगती है और अपने एनवायरनमेंट में वो अच्छी लगने लगती है, तब हम उसको कहते हैं कि दिस इज बेसिकली ए क्रिएटिविटी। और जब वो आपके एनवायरनमेंट को सूट नहीं करती है, जब आपके एनवायरनमेंट को नहीं दिखती है और एनवायरनमेंट आपका जब महसूस नहीं करता है, इन दैट सिचुएशन वी कॉल इट एज अ कि देख क्रिएटिविटी नहीं है, ये तो डिस्ट्रक्शन है, कुछ डिस्ट्रक्टिविटी कहलाती है। तो क्रिएटिविटी अगर आप एग्जांपल देखेंगे, एक सिंपल सा एक इमेज क्रिएट किया गया है, क्लाउड है और क्लाउड को इस तरीके से लगा दिया, एक फोटोग्राफ क्लिक कर लिया, तो क्लिकिंग ऑफ अ फोटोग्राफ इन अ डिफरेंट मैनर, ये क्रिएटिविटी है। और अगर आप इस क्रिएटिविटी को इग्नोर करते हैं और मान के चलते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी क्रिएटिविटी है, इट्स नॉट अ बिग थिंग, इट्स अ स्मॉल थिंग, इस क्रिएटिविटी को इग्नोर करते हैं, तो आप यह देखिए कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं जिनका प्रोफेशन फोटोग्राफी है, उनका सिर्फ क्रिएटिविटी के बेसिस पर ही उनकी लाइफ में प्रोग्रेस है। सो नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, द क्रिएटिविटी कैन एट एनी पॉइंट। तो एक छोटा सा फोटोग्राफ भी अगर आपने डिफरेंट तरीके से खींचा और दिस इज गिविंग एन एम्प्लॉयमेंट टू समवन, ये किसी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, और एम्प्लॉयमेंट भी तब प्रोवाइड कर रहा है जब उस एम्प्लॉयमेंट में भी उसको वहां पे स्पेशलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि यहाँ पर हम स्पेशल हैं, डिफरेंट हैं, एंड उसके फोटोग्राफ बहुत अच्छे पसंद किए जाते हैं, उसकी इमेजेस बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं, तो पीपल्स आर अर्निंग इन लैक्स ऑफ अमाउंट बिकॉज ऑफ दिस क्रिएटिविटी। तो वही एक पॉइंट है कि क्रिएटिविटी इज एवरीवेयर एट एनी पॉइंट यू सी हियर। टेक्निकल इनोवेशन से बात करते हैं, समस्या को देखते हैं, और जब कभी भी हमें समस्या दिखाई देती है, whenever we are finding a problem, immediately we try to have a solution of it, हमें immediately उसका solution भी दिखाई देता है, और जिसने वो solution देख लिया, that is what the creativity। So meanwhile if you find, किसी को भी अगर लगता है बीच में कुछ पूछना है, तो absolutely free from my side, this is a session related with the conversational session। लोगों को पता चलना चाहिए, पूछना आना चाहिए। तो इनोवेशन को अगर उठा के देखेंगे, आपका टेबल है, आपका ये कॉफी का मग है या आपका कोल्ड ड्रिंक का मग है, आपका ड्रिंक है,
आप अपने ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप टेबल पे बैठ के काम करते हैं, इसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यू फील कि ये गिर सकता है, तो उसके लिए देखिए कितना अच्छा आपने क्लचर बनाया हुआ है, जो क्लचर आपके टेबल पे हैंग हो जाएगा और ये हैंग होने के बाद इट इज गिविंग अ ग्लास लुक। अब पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री डेवलप हो गई सिर्फ एक प्रोडक्ट की सोच पर। Many time it happens we have a bottle of a cold drink, इस जो बॉटल कोल्ड ड्रिंक का होता है उसमें हमें कई बार चैलेंजेस फील होते हैं, वी फील लाइक दैट कि कैसे उसको पोर करें, पकड़ने में दिक्कत होती है, तो सिंपली एन हैंडल हैज बीन क्रिएटेड एंड बिलीव इट अ होल इंडस्ट्री इज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट। Similarly, if you see here, there is a special type of a scissor. Scissor is there, and this scissor, when you are trying to chop the things, जब आप चीजों को chop करना चाह रहे हो, under this situation, the special type of a scissor has been created. Idea कोई नया नहीं है, but if you see here, thinking differently and try to doing differently is basically giving an innovation. तो इनोवेशन इज ऑल अबाउट एंड ऑल अराउंड। इनोवेशन हर किसी के बारे में है और हर जगह पर है। इनोवेशन का कोई स्पेसिफिक डोमेन नहीं है, इनोवेशन का देयर इज नो स्पेसिफिक एरिया, इनोवेशन का कोई स्पेसिफिक ओनरशिप नहीं है, किसी के पास नहीं है। इनोवेशन इज एवरीवेयर, in every domain, for everyone. Anyone can think on that, anyone can work on that. This is what the innovation part is there. So further moving on this one and understanding that what is creativity, innovation and entrepreneurship. ये जो term है creativity and innovation and the entrepreneurship, these are the related. You people might be seeing this is basically a kind of a statement, and it looks like it's tough for you to understand, and it's definitely tough for you to see that what is written here. लिंग्विस्टिक फॉर्म में आप देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, कैसा दिखाई दे रहा है, आपके लिए एक अलग प्रोसेस है। पर अगर आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप एज अ स्टूडेंट आप समझने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप जो है, दिस फर्स्ट स्टेप इज रिलेटेड विद व्हाट, क्रिएटिविटी। This step is related with the creativity. Creativity, you feel what is around you. आप अपने आसपास देखिए, आपके आसपास आपको क्या दिखता है, and then try to understand and try to find out the new way of looking into it. उसी को देखने का एक नया तरीका, एक नया नजरिया सोचिए। जब आप उसको देखने का एक नया तरीका और नया नजरिया सोचते हैं, तभी आपके दिमाग में the first step which comes, which is called as a creativity. Then immediately it comes as a creativity. It might be in anything. It might be you are dressing up yourself in a morning. आप सुबह तैयार होके जब आ रहे हो, और तैयार होके आने के बाद मॉर्निंग में आप अपने आप को, अगर you change your dress up, अगर आप अपने ड्रेसअप को भी चेंज करते हो, अगर आप अपने ड्रेसअप को भी चेंज करने का स्टाइल करते हो, that might be a creativity in you. आप अपने रोज के किसी स्पेसिफिक पैटर्न को भी चेंज करते हो, that might be a creativity. तो क्रिएटिविटी के लिए किसी बड़ी चीज का इंतजार नहीं करना है। क्रिएटिविटी इट शुड बी इन योर फोकस, इट शुड बी इन योर ब्रेन। ये आपके ब्रेन में होनी चाहिए कि वॉट एवर आई एम लुकिंग, इज देयर अनदर वे, क्या इसका कोई दूसरा तरीका है, क्या इसका कोई अनदर प्रोसेस है जो इसको, जो मुझे अपीयर हो रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, कैन मेक अ बेटर वन, पहले से अच्छा कर सकता है। अगर कोई भी चीज अगर आपको पहले से अच्छी कर सकती है तो यू आर अ क्रिएटिविटी। सो एनीवन कैन बी अ क्रिएटिविटी एट एनी प्लेस। तो आप अब मॉर्निंग से उठ के जो क्रिएटिव होगा, इट माइट बी एट एवरी प्लेस। किसी ने आपसे कोई बात कही, कोई बात आपको किसी ने मॉर्निंग में समझाई, किसी ने कोई स्टेटमेंट आपको दिया, अब आपने उसी स्टेटमेंट को सोचा समझा, जैसे मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, क्रिएटिविटी को लेके समझा रहा हूँ, अगर आपने इन्हीं शब्दों को सुना, समझा और समझने के बाद किसी दूसरे को और अच्छे तरीके से समझाया, अगेन इट इज अ क्रिएटिविटी ऑफ अ ब्रेन। तो ट्रस्ट ऑन मी व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, क्रिएटिविटी कोई हार्डवेयर प्रोजेक्ट लेके बैठ के आप उसको ठीक करके नया प्रोजेक्ट बनाने में नहीं है। क्रिएटिविटी इज बेसिकली इट इज इन योर ब्रेन। क्रिएटिविटी आपके ब्रेन में है, क्रिएटिविटी आपके दिमाग में है कि हर वो चीज जो आपके आसपास आपको दिखाई देती है, उस चीज को आप बेहतर बनाने का सोचना चाहते भी हैं या नहीं चाहते। इफ यू वांट टू डू इट, then definitely you will find out a number of ways to make it a change. आप बहुत सारी चीजों को चेंज कर सकते हो
आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आप लोग पढ़ते हैं, आपकी अपनी खुद की एक स्टडी टेबल होगी, जरा आप उस स्टडी टेबल को एक बार जाके आज अपने यहाँ से जाने के बाद अपने घर पर उस स्टडी टेबल को गौर से देखिएगा। जब आप उस स्टडी टेबल को देखेंगे गौर से तो आपको अंदाज लगेगा, एट द सेम टाइम आप इमीडिएटली अपनी स्टडी टेबल को चेक करेंगे और चेक करके आपको लगेगा ये इस तरीके से जो रखी हुई है इसका अरेंजमेंट में चेंज कर सकता हूँ। एट द मोमेंट जब आपके दिमाग में ये थॉट आया, आई कैन चेंज एन अरेंजमेंट विच गिव यू बेटर फैक्ट्स एंड बेटर रिजल्ट्स, immediately you have become a creative. Immediately the creativity is inserted and will come out as a response to you. वैसे ही क्रिएटिविटी आ गई। तो मेरा, आप अगर क्रिएटिव बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं बी क्रिएटिव बी क्रिएटिव बी क्रिएटिव, आप बन जाइए, क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, पर क्रिएटिविटी कैसे आती है, क्रिएटिविटी के लिए हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि हम क्रिएटिव हैं या नहीं है, क्योंकि हर कोई हर वक्त एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट और आउटकम क्रिएट नहीं कर सकता है। बहुत बड़ा और बहुत अच्छा प्रोडक्ट आउटकम जिसको जनरल पब्लिक रिकॉग्नाइज करे, इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज करे, आपका इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज करे, वो तब आता है जब मल्टीपल उसके पीछे सेशन हो चुके होते हैं, मल्टीपल चीजें उसके पीछे हो चुकी होती हैं, तब वो एक सेशन एक दिन निकल के बाहर आता है, तब आपकी छोटे 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 जो आपने क्रिएटिव पॉइंट्स क्रिएट किए थे, देन यू वुड बी एबल टू गेट अ परफेक्ट आउटकम ऑन द बेसिस ऑफ दैट. So what's my objective is here? My objective is here the creativity is in a vision. आप अपनी vision में उसको चीज को अगर आप लेके आएंगे तो step is what? Every day analyze everything. अगर आप अपना बैग लगा रहे हैं, कॉलेज का बैग लगा रहे हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेदर आई एम जस्ट पुटिंग माई बैग इफेक्टिवली, कि जहां से मुझे पेन निकालना है वहां से मैं पेन निकाल पाऊँ, जहां से मुझे बुक निकालनी है, जिस कॉपी की मुझे पहले जरूरत पड़ती है वो निकालूं. सो इट मीन्स you are becoming creative so that you are making your efforts less. आप क्रिएटिव बन रहे हो और आप अपने एफर्ट्स को कम कर पा रहे हैं. सिमिलरली बिकॉज यू पीपल बिलोंग्स टू टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और स्किल बेस्ड इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, अब ये क्रिएटिविटी डेली लाइफ से जब आपको लगने लगता है कि ना डेली लाइफ आई एम क्रिएटिव, मैं क्रिएटिव हूँ और मैं सोच पाता हूँ, मैं चीज़ों को अच्छे और बेहतर तरीके से कर पाता हूँ, तब ये क्रिएटिविटी डेली लाइफ से निकल के स्पेसिफिक डोमेन में जाती है. स्पेसिफिक डोमेन का मतलब जब वो ऐसी जगह पर जाती है जहां पर हम कोई प्रोजेक्ट आउटकम लेके बैठे हुए होते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, जिस चेयर और टेबल पर आप बैठे हुए हैं, किसी बच्चे ने सोचा कि जिस चेयर और टेबल पर बैठे हैं उस पर मुझे कंफर्ट और डिस्कंफर्ट कितना महसूस हो रहा है. ये बच्चा जो आगे हाथ रख के बैठा है वो महसूस करे कि जिस टेबल पे मैंने हाथ रखे हुए, हाँ ये जो ब्लैक जैकेट पहने हुए हैं, ब्लू शर्ट पहन के बच्चा बैठा हुआ है, या तो आप जरा चेक करके देखिए कि जिस टेबल पे आप हाथ रख के बैठे हैं वो कितना टेबल आपके लिए कंफर्टेबल और कितना डिस्कंफर्ट फील करा रहा है. तो जब कभी भी आप किसी ऐसी इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो आप ऐसा चेयर का डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं कि अगर मेरा हैंड रेस्ट थोड़ा और ऊपर हो तो ज्यादा कंफर्टेबल होगा, या नीचे करूंगा तो कंफर्टेबल होगा. जो मैंने प्लेट ले रखी है क्या मेरी बैठने की जगह को प्रॉपरली यूज कर पा रही है या इसमें कम है. तो जब क्रिएटिविटी स्पेसिफिक डोमेन में आने लगती है, बहुत स्पेसिफिक हो जाती है, जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में काम कर रहा है और किसी सर्टेन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, किसी टाइप ऑफ एप्लीकेशन पे काम कर रहा है, तो जब वो बच्चा देखता है कि ये एप्लीकेशन में ये कमियां हैं, इस कमियों को अगर मैं इन तरीके से दूर कर सकता हूँ, तो वो क्रिएटिविटी क्रिएट करती है इनोवेशन. समझो रूल, पहले है क्रिएटिविटी एवरीडे प्रोसेस है, और क्रिएटिविटी को जब किसी स्पेसिफिक डोमेन पे लगा दिया जाता है, ध्यान से लगाया जाता है, कंटिन्यूसली लगाया जाता है, सोचा जाता है, काम करा जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसी इनोवेशन में. तो किसी बच्चे ने जिस चेयर के ऊपर आप बैठे हुए हो, जिस हैंड रेस्ट को आप रखे हुए हो, जो आपके सामने आपका ये टेबल चेयर आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपने किसी बच्चे ने इस टेबल चेयर को बेटर कंपैटिबली बना दिया, वहीं पर एक इनोवेशन क्रिएट हो जाता है. और जब वो इनोवेशन लोग पसंद करते हैं, रिकॉग्निशन होता है, बेनिफिट्स होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, तो वो इनोवेशन कन्वर्ट हो जाता है एंटरप्रेन्योरशिप में, और यहीं से जर्नी स्टार्ट हो जाती है. सो इफ यू सी, creativity, innovation and entrepreneurship are basically 3 stages. क्रिएटिविटी हर समय हर वक्त आपके दिमाग में, आपकी डेली लाइफ में. क्रिएटिविटी को उठा के जब स्पेसिफिकली किसी प्रोजेक्ट पर लगा दिया तो वो बनता है इनोवेशन. और जब उस इनोवेशन से वो जो प्रोजेक्ट आपने बनाया, जो उसका आउटकम अगर निकल के आ गया, यू आर गेटिंग अ सर्टेन आउटकम, आउटकम निकल के आ गया और वो आउटकम वैल्यूड है, उसकी बिजनेस वैल्यू है, लोग उसको लेना चाहते हैं, उसको पसंद करना चाहते हैं, देन यू हैव अ स्टार्टिंग ऑफ अ एंटरप्रेन्योरशिप. दिस इज बेसिकली अ जर्नी फ्रॉम क्रिएटिविटी टू एंटरप्रेन्योरशिप. और जितने भी आसपास आप एग्जांपल देखेंगे अराउंड यू,
ऑल दीज एग्जाम्पल्स कम फ्रॉम द सेम पिक्चर। आज का जो टाइम है, जो वर्ल्ड है, वो शार्क टैंक का वर्ल्ड है। और शार्क टैंक का जो वर्ल्ड है, इन दिस वर्ल्ड एवरी वन इज फोर्स टू से दैट इफ यू आर हैविंग अ स्किल तो यू शुड हैव योर ओन बिजनेस। अगर आपका स्किल है तो आपका खुद का बिजनेस होना चाहिए। यू शुड बी एंटरप्रेन्योर, यू शुड हैव योर ओन स्टार्टअप। आपका खुद का अपना स्टार्टअप होना चाहिए। तो ये जो बात है, शार्क टैंक का जो जो एरा चल रहा है, उसमें हर बच्चा जब उसको देखता है, टीवी पे देखता है, वॉच करता है, वॉच करने के बाद कहता है कि नहीं ये तो पॉसिबल है, ये मैं भी कर सकता हूँ। तो इस पॉसिबिलिटी को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, दैट रिक्वायरमेंट इज फर्स्ट योर एवरीडे लाइफ प्रोसेस which is called as a creativity. Then second process after the creativity, then it is a product based innovation. And when the product has a business value, प्रोडक्ट को लगता है कि आप इसको कमर्शलाइज कर सकते हैं, कोई खरीदने वाला है, उसको लेने वाला है, तब ये बन जाती है एंटरप्रेन्योरशिप। और ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल आप अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं, कर सकते हैं, बता सकते हैं। तब आप जाके कह सकते हैं कि या देयर इज अ चांस ऑफ बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर। तो आप एंटरप्रेन्योर अगर बनना चाहते हैं, जिस किसी भी बच्चे को लगता है कि कहीं भी करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ध्यान से समझिए, सारा जो भी प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस बिजनेस वैल्यू पर ही डिपेंड करता है। आप इस इंस्टीट्यूट के अंदर आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद जॉब ढूंढ रहे हैं, तो जॉब जिस जगह जाके करेंगे वो जॉब भी एक्चुअली एक बिजनेस ही है। जिस बिजनेस ने आपको जॉब दी है, जो आपको जॉब दे रहा है, वो अपना एक बिजनेस कर रहा है, और उस बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए आपकी स्किल की रिक्वायरमेंट है। तो अल्टीमेटली आप जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, जो सेशन आप मेरे से ले रहे हैं इनोवेशन का, या जो किताबों में आप पढ़ते हैं, जो सिलेबस में पढ़ते हैं, वो सारा का सारा जितना भी सेशन है, इट ऑल हैज अ बिजनेस वैल्यू। और बिजनेस वैल्यू जैसे ही क्रिएट हो जाती है, वो चीज पिक्चर में आ जाती है, वही चीज यूटिलाइजेशन में आ जाती है, वो चीज इस्तेमाल होने लगती है। और जिसकी बिजनेस वैल्यू नहीं होती है, वो चीज एब्सोल्यूट हो जाती है, गायब हो जाती है, हट जाती है। तो that what is target is there to understand your creativity, innovation, and the same in terms of entrepreneurship that can be converted. तो अगर किसी को भी लगता है, if have any question related to that, तो may ask, पूछ सकते हैं immediately, no issue. Right. तो अब if somebody asks me like कि इस किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, किस तरीके से हम इसको जान सकते हैं, कोई अगर हमसे स्टेजेस की बात करे, पूछे कि अगर हम कोई सर्टेन क्रिएटिव प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये कि जो सिंपल सा एक फ्लो चार्ट का मतलब कुछ नहीं है, जैसे सिंपली स्टेप्स। स्टेप क्या कहता है? अगर आपकी आईज अपने आसपास होने वाली प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज कर सकती हैं, किसी भी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर सकती हैं, तो आप उसका एक क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले जरूरत होती है अपने आसपास की किसी भी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने की। जो आपका फील्ड है, इन विच फील्ड यू फील एक्सपर्ट, आप जिसके एक्सपर्ट फील करते हो, उस फील्ड से रिलेटेड आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। अब प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो हमारे डेली लाइफ में सिंस मॉर्निंग टू टिल नाइट बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्याएं। कोई सुबह सो के उठता है, सो के उठने के बाद में उसको नींद बहुत आती है, उठने का मन नहीं करता है, ये एक प्रॉब्लम है। तो जिनको नींद ज़्यादा आती है, आलस रहता है सुबह उठने के बाद, नहीं तो जिनका फील्ड मेडिकल फील्ड है, या जिनका फील्ड योगा है, जिनका फील्ड नेचुरोपैथी है, जिनका फील्ड हेल्थ साइंसेज है, वो लोग उन लोगों को टारगेट बनाते हैं और कहते हैं कि यस, आपकी जो सुबह उठ के आलस वाली प्रॉब्लम है, इसके लिए हमारे पास इलाज है कि रिवाइटल की गोली खा के सोइए, आराम से सुबह उठेंगे, बढ़िया फ्रेश उठेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। तो देखो, एग्जाम्पल बड़ा सीधा सा है, लेकिन एग्जाम्पल कहाँ से आइडेंटिफाइड हुआ है? एग्जाम्पल आइडेंटिफाई हुआ है कि जिस फील्ड के डोमेन का जो पर्सन था, उस पर्सन ने अपने फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और फाइंड आउट किया कि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ पीपल से जो सुबह थका हुआ महसूस करते थे सुबह उठने के बाद में, तो उन्होंने एक प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया, क्रिएटिविटी क्रिएट की, प्रोडक्ट क्रिएट किया, और प्रोडक्ट क्रिएट करके प्रोडक्ट की बिजनेस वैल्यू क्रिएट की, मार्केट में लॉन्च कर दिया, और रिवाइटल अपने आप में करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री बन गई।
लाइक दैट. सो एवरी डोमेन, हर किसी डोमेन की कोई ना कोई एक सर्टेन एरिया ऑफ प्रॉब्लम होती है. ऐसे ही बहुत सारे. अब आप आजकल आगे के टाइम पे देखेंगे, बिकॉज यू बिलोंग्स टू टेक्निकल फील्ड में इफ यू मूव ऑन फर्दर, आप देखेंगे इवन आप टूथब्रश जो करते हैं, जो सिंपल सा ब्रश, सेकंड स्टेप, आप उठने के बाद आपने ब्रश करना स्टार्ट किया. आज आप देखेंगे जो टूथब्रश इंडस्ट्री है, अगर इसको आप निकाल के देखिए, जरा इसका सर्वे करके देखिए, करोड़ों अरबों रुपए की टूथब्रश इंडस्ट्री है. लोगों को दांत साफ करने थे, एक समस्या थी, कोई बात नहीं, सैकड़ों साल पहले थी, बहुत टाइम में से चली आ रही है. जो हम लोग थे फिर उसका दातुन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसका सब्सिट्यूट निकाला, किसी ने ब्रश किया, और ब्रश बनाने वाली कंपनी आज भी क्रिएटिव और इनोवेटिव होती जा रही है. कैसे इनोवेटिव और क्रिएटिव हो जाएगी? ब्रशल्स के डिजाइन को ही चेंज करते रहते हैं. वो इस हिसाब से चेंज करते हैं कि कौन से ब्रशल का किस तरीके का डिजाइन होगा जिससे आपके बैक्टीरिया कंपैरेटिवली मुंह से ज्यादा बाहर आ पाए. टंग क्लीनर भी ब्रश के पीछे दे देते हैं. हैंडल पकड़ने का जो हैंडल है उसका कितना स्मूथ है, कितना कंफर्टेबल है, कितना आपके हाथ में ग्रिप अच्छी होती है. जस्ट टेक एन एग्जांपल, यू वांट टू ब्रश योर टीथ, आपको सिर्फ अपने दांतों को साफ करना है, और उसके पीछे इंडस्ट्री पूरी रिसर्च और क्रिएटिविटी और इनोवेशन को लेके लग गई, और जाने के बाद उन्होंने पूरा के पूरे नई पूरी ब्रश इंडस्ट्री डेवलप कर दी. यस, एनीबडी हैज क्वेश्चन, समबडी हैज रेज्ड हैंड. सर जो मेरे क्वेश्चन है, आपने कहा क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इसमें डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस भी तो काम करता होगा कंपनीज के अंदर. Exactly. So first of all, the problem identification is more important. If you have a problem identification, the first part is there. Then again, your creativity comes with the design thinking. Design thinking and the critical thinking both are the combined term. So critical thinking gives you identification of a problem and as well as finding out the better solution. Then the design thinking comes with the finding out the way. वो रास्ता देती है design thinking कि किस तरीके से जो problem आपने identify की है. Yes, please sir. सर वो बीच में वैसे हो गया जी, आप कंटिन्यू कीजिए. हाँ, तो जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद अब आपको उसका वे आउट भी तो निकालना है, क्योंकि मेरे ब्रश से मेरे दांत साफ नहीं हो पा रहे थे. अब डिजाइन थिंकिंग ये कहेगी कि जस्ट गो फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन वर्क एंड द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ओवर देयर, कि हाउ यू आर गोइंग टू क्लीन अप योर टीथ. तो अलग अलग लोगों के मुंह के साइज लेना, अलग अलग लोगों के मुंह के दांतों के साइज लेना, और एक ऐसा ब्रश डिजाइन करना जो हर किसी के साथ सेट हो जाए और कहे कि हाँ ये इट इज गुड फॉर एवरीवन. तो दिस इज व्हाट द डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस, ये डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस में आ जाता है. यस सो सर. डिजाइन थिंकिंग में सर हम एनालिटिकल थिंकिंग पे जाएंगे या इंट्यूटिव थिंकिंग पे जाएंगे? सर दोनों ही काम करती है. डिजाइन थिंकिंग के जो प्रोसेस होते हैं, एक थ्योरेटिकल एंड एज वेल एज द एनालिटिकल, बोथ थिंग्स आर देयर, दोनों पे ही काम करते हैं. पैरेलल इक्वेशंस चलती हैं, दोनों पे ही काम करना पड़ता है. देन ओनली फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्चुलाइजेशन किया जाता है. जब कंसेप्चुलाइजेशन हो जाता है, फिर देन वी नीड, is there any analysis, need analysis is there, then we go for a need analysis. theoretical conceptualization किया, फिर need analysis पे जाते हैं, फिर need analysis के बाद में फिर practical expectations पे जाते हैं कि ये वास्तव में काम करेगा, तब prototype development पे जाते हैं. तो obviously बिल्कुल सही बात है, बिना analytics के काम नहीं चलेगा और उसके basis पे काम करेंगे जी. So ultimately target is what, मतलब like it's definitely for my students to understand that कि इट इज यू ओनली, कोई बाहर से नहीं आता, कहीं से नहीं आता, इट इज ओनली यू. और जो लोग बैठ के इस कमरे के अंदर, जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं इस कमरे के अंदर, वो अगर वो बच्चे वास्तव में इसको फोकस कर रहे हैं और इसको सुन रहे हैं, अगर इसको समझ रहे हैं, और अगर अभी से वो अपने आप को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, अपने आप को लुक इनटू करना स्टार्ट करते हैं, तो दे वुड बी द बेटर, दे वुड बी द नेक्स्ट पीपल, दोज विल बी कमिंग टू द शार्क टैंक्स. या अपने जिस किसी भी जॉब में जो जाएंगे, अपने जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा, उस एम्प्लॉयर के लिए आप सबसे बढ़िया पर्सन कहे जाएंगे, सबसे वैल्यूएबल पर्सन आप कहे जाएंगे, क्योंकि आपके पास में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के साथ ट्रबल शूटिंग, उस प्रॉब्लम को शूट करने का प्रोसेस भी आपके पास में होगा, क्योंकि आप सोच पाते हैं. आप जैसा कि अभी सर ने कहा कि जैसा कि डिजाइन थिंकिंग, आप उसको थॉट सोच पाते हैं, आप उसको क्रिटिकल थिंकिंग में लेके जा पाते हैं. दैट्स पॉसिबल. सो स्टेप नंबर 1 प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. और जैसा मैं एग्जांपल अभी दे रहा था कि टूथब्रश का एग्जांपल ले रहा था, लोगों ने ब्रशल्स पे काम करना स्टार्ट किया, और उसके बाद अगर आपको अभी पता चलेगा तो नए जो टूथब्रश आ गए हैं, इनके अंदर बेसिकली जर्म्स को आइडेंटिफाई करने की भी कैपेसिटी आ गई है. सो दे आर बैटरी ऑपरेटेड. अब वो बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक आपके टूथब्रश आ गए हैं, बैटरी ऑपरेटेड आ गए हैं, और बैटरी ऑपरेटेड होने के बाद में दे कैन आइडेंटिफाई योर जर्म्स एंड समथिंग. तो
इनोवेशन कंटिन्यूसली चलता जा रहा है और आने वाले टाइम में आप देखेंगे आपके जो टूथब्रश होंगे वो IoT बेस्ड हो जाएंगे, मतलब टूथब्रश के अंदर भी इंफॉर्मेशन सेंडिंग एंड रिसीविंग की इंफॉर्मेशन होगी, ताकि आप अगर आगे आने वाली जनरेशन में, आपकी जनरेशन में बच्चा ब्रश करता है, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं ना, ब्रश नहीं करते हैं, तो आप उनको वो अगर IoT वाला ब्रश दे के आ जाएंगे, तो वो बच्चा अगर ब्रश करेगा तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यस ही हैज डन फॉर 5 मिनट ब्रश, 5 मिनट तक इसने ब्रश किया, और नहीं करेगा तो वो पता चल जाएगा कि उसने नहीं किया। सो समथिंग यस। सर मेरे इसमें एक और पॉइंट ऐड करूंगा। जी जैसे ना हम कई बार क्या होता है, हमें ये नहीं पता होता कि हम ब्रश किस वे में कर रहे हैं। एक्चुअली इसके ऊपर ब्रश भी बहुत सारे वे हैं कि आप कैसे जर्म्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो जी मेरे को लगता है ब्रशेस के अंदर ये टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी कि अगर आपने ढंग से ब्रश नहीं किया, उसे वे प्रॉपर वे होना चाहिए उसमें नहीं किया, तो शायद वो ये भी बता पाए कि आज के दिन ऐसे ब्रश हुआ है, ये पैटर्न था उसका। क्योंकि पैटर्न तो आ जाएगा, पैटर्न तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर ही सकते हैं कि किस पैटर्न में ब्रश किया है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली इज पॉसिबल, एग्जैक्टली। बड़ा आसान सा है ये तो, डिजाइन थिंकिंग की आपने क्योंकि बहुत अच्छी बात कही, बड़ा आसान सा है। यदि आप अपने ब्रशल को अपनी सरफेस पे अगर प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ब्रशेस के कांटेक्ट एरिया पे इम्पैक्ट आएगा। तो अगर आपका कांटेक्ट एरिया अगर प्रॉपर एडिक्वेट नहीं है आपके टीथ के साथ में, तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल फैक्ट है कि आप इमीडिएटली पता कर पाएंगे कि कैसा है। जैसे बिल्कुल ऐसा होता है कि कई बार आप ऑक्सीमीटर यूज करते हैं, अपने फिंगर पे लगाते हैं, अगर ठीक से ऑक्सीमीटर नहीं लगाए तो आपको रीडिंग नहीं देता, ऐसा संभव है बिल्कुल। और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में, सेंसर्स के साथ में, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर। तो अल्टीमेटली इट्स एन एग्जांपल, कि ब्रशिंग का मैंने एग्जांपल इसलिए लिया कि सुबह उठते ही आप थके हुए हैं और सुबह उठते ही फिर आप ब्रश करने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे अगर आप उठने के बाद रात के सोने तक जाएंगे, हर वो चीज जो आपके साथ हो रही है, इट हैज अ बिजनेस वैल्यू, एंड दिस बिजनेस वैल्यू नंबर ऑफ द पीपल्स आर वर्किंग बिहाइंड ऑन दैट। इतने लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं, इतनी इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज इस पे काम कर रही हैं, इतने बड़े एम्प्लॉय सेक्टर इसके ऊपर काम कर रहा है, एंड द पीपल्स दोज आर वर्किंग रिसर्च ऑन दैट। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई करने के बाद सेकंड स्टेप है उसको एनालाइज कीजिए कि वो वास्तव में जो प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई की है वो कहाँ कहाँ कितने कितने लोगों पर एप्लीकेबल है। अगर वो प्रॉब्लम एक जनरल प्रॉब्लम में, बिग मास में निकल के आती है, तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है विच शुड बी एड्रेस्ड। एनालाइज कीजिए कि उसका कोई सोल्यूशन कहीं डेवलप है या नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम थिंकिंग में ये होता है कि जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो हमारे यहाँ सोल्यूशन नहीं है लेकिन कहीं सोल्यूशन है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ its where it is working, where it is applicable, what is the root of it, it's all related with what that. Similarly, moving ahead and looking for the idea generation, तब जब आप एक बार प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो देन यू मूव इनटू एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या आइडिया है। एक आइडिया जनरेशन प्रोसेस के ऊपर आप काम करते हैं। आइडिया जनरेशन का मतलब क्या है? आइडिया जनरेशन का प्रोसेस का मतलब ये है कि दैट यू आर फाइंडिंग आउट सम बेटर सॉल्यूशन ऑफ इट, यू आर ट्राइंग टू लुक इनटू द सॉल्यूशन, और जब ये सॉल्यूशन जो आपको नजर में आता है वो सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम की एनालिसिस और प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पर होता है। सो द व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आपने एनालिसिस कर लिया, एनालिसिस करने के बाद तब आप वहां पर आइडेंटिफाई करते हो कि ओके ये जो प्रॉब्लम मेरे को दिखी है ये यहाँ यहाँ एप्लीकेबल है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम, यानी कि इस प्रॉब्लम की भी अपनी खुद की एक बिजनेस वैल्यू है, इस प्रॉब्लम की अपनी खुद की एक बिजनेस वैल्यू है, और जिस प्रॉब्लम की जो बिजनेस वैल्यू उस वैल्यू को मुझे यहाँ पर यूज करना है। तो आइडिया आ गया, एनालिसिस हो गई, अब आपको निकालना है कि इसका क्या वे आउट है, और जब आपने जो वे आउट निकाला है उस वे आउट को भी आप इवेल्युएट करते हो, उस वे आउट को भी आप इम्प्लीमेंट करते हो। इम्प्लीमेंट करने के बाद में फिर फाइनली ये देखते हो कि ये इवेल्युएट करने के बाद आफ्टर द इवेल्युएशन कि ये जो मैंने आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है कितने लोग इस आइडियाज के साथ सेटिस्फाइड है, कितने परसेंटेज ये मेरा ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर गया। जब ये सारा कुछ हो जाता है देन यू गो फॉर अ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन विच इज कॉल्ड एज अ रियलाइजेशन ऑफ अ थिंग। तो ये दिखने वाले 4 या 5 स्टेप ये हर कोई कर सकता है, हर किसी के काम आ सकते हैं, हर किसी के स्टेप प्रोसेस हो सकते हैं। तो पहला स्टेप अगर आप यहाँ से आज जाते हैं तो अपने आसपास सबसे पहले, और आप लोगों के लिए मैं टूल बता रहा हूँ, आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन अगर आप ऐसे सोच के करते रहेंगे मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं, आप अपने आसपास होने वाली हर वो चीज जिस चीज को आपको दिखाई देती है उस चीज को आप एक पेन पेपर या छोटा डायरी अपने पास में रखें, कीप नोटिंग इट।
जब आप 10, 15, 20, 25, 30 चीजें अपने आसपास होने वाली लिखोगे तो उनमें से आप खुद कंपेयर करके लिखोगे कि यार जो दो जो मैंने लिखी थी बेकार है, नीचे की ये बेकार है, ये एक ऐसा पॉइंट नजर आ रहा है विच इज द मोस्ट वैल्यूएबल। ये सबसे ठीक पॉइंट है, सबसे सही प्रॉब्लम है जिसका आइडेंटिफिकेशन सोल्यूशन भी। प्रॉब्लम एनालिसिस करके भी आप देखोगे जो 20-25 प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की, उन 20-25 प्रॉब्लम में से कितनी प्रॉब्लम्स आपको ऐसा लगता है कि जिसको उठाया जा सकता है और जिस प्रॉब्लम की खुद की बिजनेस वैल्यू होगी ही। तो जब कोविड आया तो आपने देखा उससे पहले ये जूम मीट का कोई यूज नहीं था और गूगल मीट का कोई यूज नहीं था, वेबएक्स का कोई यूज नहीं था, लेकिन जैसे ही कोविड आया हर किसी को पता चल गया कि ऑनलाइन सॉल्यूशंस कितने इंपॉर्टेंट है। और आज हमने इसको अपनी जिंदगी, तो जिन लोगों ने उस टाइम पर इन सॉल्यूशंस को प्रोवाइड किया, वो सॉल्यूशंस उस समय की बेसिकली यही था कि प्रॉब्लम, कोविड आया, लोगों को अपना काम करना था, लोगों को एक दूसरे से मिलना था, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के, बिना मिले हम रह ही नहीं सकते। लोगों को मिलना था, लोगों को अपना काम करना था, और इसके लिए उन्होंने ये सोल्यूशन जो निकाला वो सोल्यूशन था जो आज कितना पॉपुलर है। आज हम और आप वहां बैठे हुए हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ और आपसे बड़े आराम से बातचीत कर रहा हूँ, आप मेरी बात को सुन भी पा रहे हैं। तो जो फोकस्ड हैं, जो वास्तव में सुनना चाहते हैं, जिनको समझ में आ रही है बात और जो वास्तव में अपने अंदर परिवर्तन करने जा रहे हैं, उनके लिए कितना अच्छा माध्यम है कि हाउ दे आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। तो इसी तरीके से कोई और प्रॉब्लम आगे आ रही होगी जो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपको समझाएगी और आपको बताएगी कि कैसे आप इस पर काम करने वाले हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड नहीं हुआ अभी, जस्ट अब हम ये बात करते हैं कि यदि अगर हमें बेसिकली प्रॉब्लम को देखना है तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स हमारी क्रिएटिविटी को, है ना, हम जैसे कहना चाहते हैं हम क्रिएटिव हो रहे हैं और क्रिएटिव बनना भी चाहते हैं। जैसे आप लोगों का कुछ सेशन को सुनने के बाद, अभी तक के सेशन को सुनने के बाद कुछ लोगों की बात तो सही है, अगर हम अपनी ज़िंदगी को बेटर जीना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में जाना है, तो अंडर दिस सिचुएशन कहीं ना कहीं हम क्रिएटिव होंगे तो ओबियसली हर काम अच्छा कर पाएंगे, रिलेशनशिप को भी अच्छा कर पाएंगे, अपने आसपास के लोगों में फादर मदर पेरेंट्स भाई बहन इन सब के साथ अपना कन्वर्सेशन होता है, कहीं झगड़ा होता है, उसको भी बेटर कर पाएंगे। तो ये सब किससे आएगा? क्रिएटिविटी से आएगा। हर कुछ क्रिएटिविटी टू मेक इट बेटर, क्रिएटिविटी टू मेक इट स्मूथ, चीज़ों को अच्छा बढ़िया और बेहतर बनाने के लिए क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी लाइफ का एक पार्ट है। तो बहुत से लोगों को लगता होगा अब यहाँ से कि हमें क्रिएटिव होना चाहिए। तो अब आप जिस किसी भी स्टेज पर हो, आपकी क्रिएटिव एफिशिएंसी जो है, वो क्रिएटिव एफिशिएंसी इट डिपेंड्स ऑन फ्यू फैक्टर्स। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर ये डिपेंड करती है। सबसे पहली बात है आपकी पर्सनालिटी। आप लोगों को कैसा दिखना चाहते हो? आप लोग जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए, ऑल आर दोस आर, आप सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। कैसे? ये बहुत जल्दी जल्दी बोलने वाला है, ये इसको तो समझ में कुछ आता ही नहीं है, अरे ये बहुत तेज है, अरे ये वैसा है। यानी एक ना एक रिफ्लेक्शन आपकी पर्सनैलिटी का आपकी सराउंडिंग के अंदर होता ही है। ये रिफ्लेक्शन जब आपकी सराउंडिंग में ये क्रिएट होने लगेगा कि ये तो ट्रबल शूटर है, अरे ये तो समस्या का समाधान देने वाला है, इसके पास जाओ समस्या का समाधान मिलेगा। At that moment you start thinking on that, immediately you try to understand that immediately you have been a creative thinker, आप क्रिएटिव थिंकर बन गए। और जब आप क्रिएटिव थिंकर बन जाओगे इन द सिचुएशन, वहीं आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होने लगेगी, आप सबकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होने लगेगी कि ये तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने वाला है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने वाला है, इसलिए इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, ट्रबल शूटर है, इसके पास आइडियाज होते हैं, बढ़िया सॉल्यूशन होता है, दैट इज व्हाट। तो आपकी पर्सनालिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर होनी चाहिए कि ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर। बिलीव इट, आपको हर जगह लोगों को समस्याएं बतानी नहीं है, समस्याएं देखनी है और उनका समाधान बताना है। अगर आपने अपने आसपास के एनवायरनमेंट में you have started thinking, you have started looking the problems and started talking about the solution, then you are a problem solver. और अगर आपने अपने एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम देखना शुरू कर दिया और लोगों से सॉल्यूशन मांगना स्टार्ट कर दिया, then you are basically problem creator. तो ये अंतर होता है, प्रॉब्लम क्रिएटर है या प्रॉब्लम सॉल्वर है आप। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करनी है प्रॉब्लम सॉल्वर की तरीके से, सो दैट
whomsoever is in your surrounding will see that you. सेकेंड फैक्टर जो काम करता है, जो कि बायोलॉजिकल फैक्टर है, एज। एज बहुत मैटर करती है। सबसे ज्यादा क्रिएटिव आप अपनी अर्ली एज में होते हो, मतलब जब सबसे ज्यादा आप देखते हो ना, छोटे बच्चे सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। वो हर चीज को एक्सप्लोर करते हैं बिना किसी फियर के, बिना किसी डर के, हर कुछ नया, और वहां पे अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। धीरे 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 जैसे आ जाते हैं, वैसे वैसे हम बाइस्ड होते जाते हैं अपनी डेटा सेट में, जो हमारे अंदर आ जाता है। वो डेटा सेट हमारी क्रिएटिविटी को डम करता है। तो बेस्ट क्रिएटिविटी आपको अर्ली चाइल्डहुड में मिलती है, उसके बाद स्कूल एज में मिलती है, स्कूल एज में के बाद में फिर आप जाके आपको जब एम्प्लॉय वगैरह बन जाते हैं, कहीं जॉब करते हैं, फिर धीरे 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 जैसे एज फैक्टर आता है, ये कम होती जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एट राइट पॉइंट यू आर अ वेरी वंडरफुल पोजीशन। सबसे अच्छी जगह पर सबसे अच्छी क्रिएटिविटी आपके ऊपर है। आप इसीलिए आप फील भी करते होगे कि आजकल जितने भी बच्चे हैं, आजकल तो इंस्टाग्राम रील का जमाना है, यू सी दैट कितने कितने लोग यंगस्टर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रील्स क्रिएट करते हैं, जो एकदम अपने आप में बड़ी सरप्राइजिंग होती है हाउ दे आर डूइंग दैट, है ना। कुछ फालतू भी बनाते हैं, ट्रेन के आगे कूदने भागने वाला, वो बेकार है, लेकिन कुछ ऐसे क्रिएटिव भी होते हैं, बट नंबर ऑफ क्रिएटिव थिंग्स दे आर डूइंग, है ना। जैसे एक मैं नंबर ऑफ टाइम्स, नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया इट इज फेमस, एयर वॉक के रील्स आप लोगों ने देखे होंगे, देखे है ना, रेज योर हैंड्स। एयर वॉक होती है जो, हाँ देखो कुछ बच्चे हैं, वेरी गुड। तो हाँ वेरी गुड। अब देखिए वो एयर वॉक जो है, इट्स अ वंडरफुल क्रिएटिविटी। मतलब एग्जांपल आप ये देखिए, इट्स नॉट फॉर द पर्पस ऑफ अ रील, रील नहीं है। जिन्होंने नहीं देखा वो आज जाके यूट्यूब पे सर्च करिएगा, इट्स वेरी वेरी वंडरफुल। मतलब द पीपल्स मेकिंग अ इल्यूजन, लोग इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि वो हवा में चल रहे हैं, ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। दिस अ वंडरफुल क्रिएटिविटी हाउ दे आर मैनेजिंग। उन्होंने स्टेपिंग इतना ब्यूटीफुल क्रिएट किया हुआ है कि नोबडी कैन आइडेंटिफाई दैट बेटर वेदर दे आर वॉकिंग ऑन ग्राउंड और वॉकिंग जस्ट अबव 6 और 7 इंच अबव फ्रॉम द ग्राउंड। तो ऐसी जो क्रिएटिविटीज हैं, ये क्रिएटिविटी यंगस्टर्स, यंग माइंड्स इतना बढ़िया कर रहे हैं और आपकी मैटर करता है। सेकेंड, क्वालिफिकेशन। एजुकेशन जो होती है, वो एजुकेशन हमें हमारी क्रिएटिविटी को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। हम क्रिएटिव हैं, कोई अगर क्रिएटिव है तो मीडिया के फील्ड में क्रिएटिव है तो मीडिया की हो गई, कोई अगर क्रिएटिव है तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्रिएटिव है, वो वहाँ की क्रिएटिविटी। कोई अगर राइटर है तो एजुकेशन लिटरेचर हमें देता है कि लिटरेचर कहता है कि भाई अब इस फील्ड में चाहिए और इस फील्ड में जाके आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज कीजिए। तो क्रिएटिविटी को डायरेक्शन जो प्रोवाइड करती है, वो प्रोवाइड करती है क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि व्हाट यू हैव अर्न टिल नाउ, आपने अब तक क्या कमाया, आपको क्या मिला, क्या आपका परसेप्शन है, कैसे आप इसको देखते हो। सो दिस इज अ वन मैटर, बट इट डजंट मीन अ लॉट। इंटेलिजेंस कैन बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अगर आप किसी चीज को करते हो, यू कुड बी इंटेलिजेंट एनफ इन अ वन। मोटिवेशन, अब हम यहाँ पे एक सेशन ले रहे हैं, आप अपने आराम से क्लासेस कर रहे थे, या आप अपने घर पर थे, या आप अपने कल घर पर हो गए, छुट्टी वाले दिन हो गए, सिंपल है, लाइफ जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, जो आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है। पर नाउ यू आर हैविंग अ डिस्कशन, यू आर हैविंग अ टॉक विद मी, जब आप मेरे से बात कर रहे हो, यू आर हैविंग अ डिस्कशन विद मी, अंडर दिस डिस्कशन यू आर हैविंग अ सर्टेन मोटिवेशन। तो जो इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उनमें से कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं बात तो ठीक है, हमें अपनी लाइफ में अपनी जिस किसी भी जिंदगी को जिएंगे, चाहे किसी के यहाँ जॉब करने जाएंगे या अपना बिजनेस चलाएंगे, दोनों ही जगह पर अगर हम अच्छा करेंगे, बेटर करेंगे, तभी हमारी वैल्यू होगी। ये पक्का है। जॉब करो, बिजनेस करो, चाहे फार्मिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन जो भी करोगे, अगर उसमें जो कर रहे हो उससे अगले दिन बेहतर करोगे, तो तुम अपने मार्केट में बने रहोगे, अपने कंपटीशन में बने रहोगे। नहीं करोगे तो 101% बाहर हो जाओगे, या पीछे रह जाओगे, या सप्रेशन फील करोगे, या अनहैप्पी रहोगे, खुश नहीं रहोगे अपनी जगह पर, आपको अप्रेजल नहीं मिलेंगे और आपको बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे। तो मोटिवेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो मोटिवेशन इसीलिए मिला कि हमने सेशन किया, और सेशन करने के बाद हमें समझ में आया कि हाँ, ये जो सेशन है क्रिएटिविटी इनोवेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, और इसी से क्रिएटिविटी से हम कुछ ना कुछ नया कर पाएंगे। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है, जो चिंता में रहते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, प्रेशर लेते हैं, तो उससे भी, स्ट्रेस से भी आपकी क्रिएटिविटी डंप होती है। क्योंकि क्रिएटिविटी आने के लिए ब्रेन का फ्रेश होना जरूरी है, ओपन होना जरूरी है, खुला हुआ होना चाहिए। दबाव अगर आप किसी चीज का लेके काम करेंगे तो आप क्रिएटिव नहीं होंगे। विलिंगनेस टू टेक रिस्क, आप कितनी हिम्मत करते हैं।
जैसे अभी मैंने यहाँ से पूछा कि कितने बच्चों ने एयर वॉक देखी है, तो कुछ बच्चों ने हाथ ऊपर कर दिया, साहब हमने एक एयर वॉक देखी है। ठीक है, अब इन्हीं में से किसी से एग्जांपल लेके आया, तुम में से कोई एयर वॉक ट्राई कर सकता है? नाउ रेज योर हैंड्स। अरे सिंपल क्वेश्चन है, कोई एयर वॉक ट्राई कर सकता है? रेज योर हैंड्स। हाँ हाँ, पीछे भी मुड़ के देखो, इफ समबडी इज रेडी। नोबडी इज रेडी। अरे वाह, शाबाश, थैंक यू सो मच, वेरी गुड, 2 पीपल्स आर हियर। तो दिस इज व्हाट विलिंगनेस टू टेक रिस्क। एयर वॉक आती है नहीं आती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ट्राई कर सकते हैं, यस। तो दिस इज व्हाट विलिंगनेस, हम चाहते हैं किसको लेना? रिस्क को लेना। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तब आपकी क्रिएटिविटी हमेशा अच्छी होगी, और अगर आप रिस्क ही नहीं लोगे तो यू विल नॉट बी क्रिएटिव। तो जिन बच्चों ने हाथ ऊपर किया और सोचा कि हम एयर वॉक कर सकते हैं, करना चाहते हैं, करके दिखा सकते हैं, वही वास्तव में अगले स्टेप पे एयर वॉक पर जा सकते हैं, अदरवाइज वो कभी आपके पास चांस नहीं मिलेगा। ऐसे ही किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी जगह पर आप जब जाएंगे तो वहां पे क्रिएटिविटी के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। फिर क्रिएटिविटी के कुछ ऑफिशियल मैटर्स भी होते हैं, वो आपसे संबंधित नहीं है, कि हायरार्की, ऑटोनॉमी, मैनेजमेंट स्टाइल, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। तो जो लेफ्ट हैंड वाला स्टाइल है, सारी चीजें हैं वो केवल आपके काम की चीजें हैं, यही वो चीजें हैं जहां पर आपको ये क्रिएटिविटी पर काम करना होगा। फेजेस टू क्रिएटिव प्रोसेस, ये थोड़ा आपके लिए वो रहेंगे, तो मैं इनको थोड़ा ब्रीफ में समझा दूं, अगर आप थोड़ा सा इसको पॉइंट वाइज समझ पाए तो क्या क्या हम किस तरीके से क्रिएटिविटी करते रहते हैं। पंकज सर, एक क्वेश्चन है सर। पूछिए सर। आपने एक टर्म यूज कर रखी है, इंक्यूबेशन, हाँ, और एक्चुअली हम हमारे लिए थोड़ा सा एम्बिगियस हो रखा है अभी टर्म। इंक्यूबेशन से क्या समझे सर हम? वेरी नाइस। मैं भी आईए रह चुका हूँ इससे पहले भी, और इंक्यूबेटर इंक्यूबेटर एक वर्ड आता है बार बार, आईआईसी के अंदर भी इंक्यूबेशन आता है, जब भी देखे हम इंक्यूबेशन आता है। क्या क्या कुछ कर सकते हैं? इंक्यूबेशन आपने भी टर्म यूज किया उसके ऊपर ना, मैं देख रहा था स्लाइड के अंदर। जी 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 जी, तो वेरी राइट। किस चीज को इंक्यूबेशन समझा जाए, किस चीज को इंक्यूबेटर समझा जाए? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए, जैसा कि अभी तक हमने बात करी, क्योंकि हम यहाँ पर कंप्लीटली इनोवेशन की पूरी बात कर रहे हैं, तो होता क्या है, इनोवेशन इज ओनली यूजफुल जब इस इनोवेशन की बिजनेस वैल्यू है। सीधी सी बात, बिजनेस वैल्यू इनोवेशन की नहीं, बिजनेस वैल्यू हर किसी की। आप एज ए एम्प्लॉय अगर वहां काम कर रहे हैं तो आपकी भी एक बिजनेस वैल्यू है। आपकी एक स्किल सेट थी, जिस स्किल सेट को यूनिवर्सिटी ने समझा, और समझने के बाद कहा कि हाँ, आप हमें ये स्किल्स दीजिए और हम आपको एज एन एम्प्लॉय रख रहे हैं। यानी आपकी खुद की एक बिजनेस वैल्यू है, इस वजह से आप वहां पर हैं। ऐसी तरीके से यूनिवर्सिटी की अपनी खुद की एक बिजनेस वैल्यू है, इसलिए यूनिवर्सिटी में बच्चे एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं कि यहाँ पर ये जाके मुझे मिलेगा। तो हर चीज की एक बिजनेस वैल्यू होती है। ये बिजनेस वैल्यू जो होती है, वो बिजनेस वैल्यू के पीछे की जो स्टोरी है, वो स्टोरी ये है कि बिजनेस वैल्यू क्रिएट होती है क्रिएटिविटी, इनोवेशन और फाइनली एंटरप्रेन्योरशिप से। जब ये किसी भी चीज को हम डेवलप करते हैं, इंक्यूबेशन का मतलब, इंक्यूबेटर बिल्कुल वैसे ही होते हैं जिन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा कि जब कभी भी एक मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह होता है, तो बच्चे जो पैदा होते हैं बिल्कुल न्यूली बोर्न होते हैं, तो न्यूली बोर्न बच्चों को जहाँ पर रखा जाता है, तो वो जब जो सेल्फ डिपेंडेंट बच्चे नहीं होते हैं, अपने आप से एनवायरनमेंट में ग्रो अप नहीं कर पाते हैं, उस एनवायरनमेंट को उनको क्रिएट करा के उनकी मदद की जाती है। तो ये इंक्यूबेशन जो वर्ड है वो वहां से डेवलप किया गया है, और ये नर्चर करने के लिए, हेल्प करने के लिए उन नए स्टार्टअप, उन नए आइडियाज को, उन नए प्रोजेक्ट्स को जिनके अंदर कोई बिजनेस वैल्यू दिखाई देती है, उसके लिए कुछ सेंटर क्रिएट किए जाते हैं विद इन द यूनिवर्सिटी, आउटसाइड द यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी जगह पर सेंटर क्रिएट किए हुए हैं, जो कि नेशनल रिकॉग्निशन के हैं। गवर्नमेंट ने अपने सेंटर्स के अलावा वेरियस यूनिवर्सिटीज के अंदर भी फंडिंग करके ऐसे सेंटर क्रिएट किए हुए हैं, जो सेंटर्स के अंदर लोगों से वो आइडियाज मांगते हैं और कहते हैं कि अगर आपका आइडिया बिजनेस वैल्यू मेंटेन करता है तो उस आइडिया को कन्वर्ट करके स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। तो ये जगह, ये स्थान जहां पर बिजनेस सेंटर्स, जहां पर उसकी बिजनेस वैल्यू क्रिएट की जाती है, बिजनेस डेवलप किया जाता है, आइडिया से बिजनेस तक का सफर,
वो जगह कहलाती है इंक्यूबेशन सेंटर्स। जी। एज ए इनोवेशन एम्बेसडर सर, जी। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि किसी बच्चे को हम प्री नर्चर कर रहे हैं, उसको कोई भी स्टूडेंट है या कोई ग्रुप आ गया हमारे पास, उसके पास आइडिया है, तो प्री नर्चरिंग ही इंक्यूबेशन का पार्ट है। यूनिवर्सिटी के अंदर तो प्री नर्चरिंग भी हो सकती है, क्योंकि अगर उसको कंपनी डेवलप करनी है तो वो एमएसएमई के थ्रू करेगा, सब कुछ वो पार्ट अलग हो जाएगा। इंक्यूबेटर वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि प्री इंक्यूबेशन पीरियड भी होता है बच्चे का, शायद जहाँ तक मेरे को जाना है। तो स्टार्ट कहाँ से करें? स्टूडेंट्स है हमारे पास यूनिवर्सिटी में, हम इनोवेशन एम्बेसडर हैं, 10 इनोवेशन एम्बेसडर हैं अभी फिलहाल आईआईसी के अंदर मेरे पास, 10 से ठीक। 12। ठीक है। हमारे पास बच्चे भी हैं, आइडियाज भी आ जाते हैं, उनको हम इंक्यूबेशन तक कैसे लेके जाएं? कहाँ कमी रह जाती है हमारे पास? ठीक है, वेरी नाइस, गुड क्वेश्चन। देखिए, दो डिफरेंट पार्ट होते हैं जब किसी भी आइडिया को हम लेके जाते हैं, तो दो डिफरेंट पार्ट आते हैं। पहला पार्ट तो उस आइडिया को नर्चर करना, और दूसरा उस आइडिया की फंडिंग कराना। तो जनरली जितने भी इश्यूज फील करते हैं, चाहे वो इंक्यूबेटर्स हों, चाहे वो खुद इन्वेंटर हो जिसने इन्वेंट किया हुआ है, वो फंडिंग वाले इश्यूज को लेके स्टक हो जाते हैं। जबकि ये फंडिंग वाला जो पार्ट होता है, ये फंडिंग वाले पार्ट के लिए बहुत सारी एजेंसी, बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंटेड है, और बहुत सारे इंक्यूबेटर्स ऐसे हैं जिनको के पास फंडिंग है और वो आपसे आइडियाज की डिमांड कर रहे हैं, सिर्फ आपको वहां तक लिंक करना है। तो इस पार्ट की वजह से पहला वाला जो पार्ट है, आइडिया वाला पार्ट है, वो डेवलप नहीं हो पाता। इसकी स्टेपिंग बिल्कुल सिंपल है। जब कभी भी कोई भी किसी बच्चे का कोई आइडिया होता है, तो सबसे पहले उस आइडिया को पेन और पेपर पे लेके आया जाता है। पेन और पेपर पे जब वो आइडिया आपके पास में आ जाता है, तब हम ये देखते हैं कि जो भी आइडिया हमारे पास में आया है, उस आइडिया को क्या हम प्रोटोटाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोटोटाइप का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जो एक स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर, एक स्पेसिफिक सर्टेन यूनिट में, स्पेसिफिक कॉन्स्ट्रेंट के अंदर बनाया गया प्रोडक्ट होता है। वो प्रोडक्ट एक सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट होता है जो किसी स्पेशल कंडीशन में काम करने के लिए बनाया जाता है। तो यदि आपने सपोज करो फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने मान के चलो कि मैं एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ पेंट डेवलप कर रहा हूँ, जो पेंट अपने आप में किसी भी टाइप का सीलन होगी, या किसी भी टाइप का मैं पानी उसके ऊपर गिराऊंगा तो वो खराब नहीं होगा, या उसके ऊपर डस्ट भी की जाएगी तो वो खराब नहीं होगा, वो आपने एक पेंट डेवलप किया। अब सबसे पहला काम आपके पास में होता है कि उसके बल्क और मास प्रोडक्शन करने की जगह इंक्यूबेटर्स और प्री इंक्यूबेटर्स तो उस आइडियाज को अंडरस्टैंडिंग लेवल तक पूरा चले जाते हैं, कंसेप्चुलाइजेशन तक जाते हैं। इंक्यूबेटर्स के पास में ये फैसिलिटीज होती है कि उस आइडियाज के वो प्रोटोटाइप्स को डेवलप कर सकते हैं। उनके पास ये फंडिंग फैसिलिटीज होती हैं कि जितना अमाउंट, अगर आपको सपोज कीजिए 100 ml ऑफ पेंट तैयार करना है, तो 100 ml ऑफ पेंट को तैयार करने के लिए वो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। जब वो फंडिंग के बाद में 100 ml ऑफ पेंट तैयार हो जाता है और उसकी टेस्टिंग हो जाती है उन सारी कंडीशंस के ऊपर, देन आफ्टर पासिंग थ्रू इंक्यूबेटर एंड प्री इंक्यूबेटर, देन देयर आर द रोल ऑफ एंजल्स। एंजल्स जो होते हैं वो बेसिकली फाइनेंशियल एंजल्स होते हैं, जो कि आपको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। फिर इंक्यूबेटर्स का काम होता है कि इंक्यूबेटर्स उन पर्टिकुलर आइडियाज को फंडिंग एजेंसी तक पहुंचाते हैं और फंडिंग एजेंसी उनको फंड करती है। ये पूरा एक स्टेपिंग का प्रोसेस होता है। तो सो जो इंक्यूबेट जब हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे के साथ, तो बिजनेस प्लान उनसे डेवलप करवाना चाहिए। एग्जैक्टली, बिजनेस प्लान इसलिए डेवलप कराना चाहिए क्योंकि अगर आपने थियोरेटिकली उसका बिजनेस प्लान तैयार नहीं किया है, और अगर आप प्रोटोटाइपिंग तक इन्वेस्टमेंट में चले गए हैं, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, प्रोटोटाइप तक का इन्वेस्टमेंट कर दिया, और उसके अगर बिजनेस प्लान नहीं तैयार है, तो ये बिल्कुल मान के चलिए कि आपका हो सकता है कि प्रोटोटाइप फेलियर होने के बाद में आपका पूरा वर्क बेकार हो जाए। ये प्रोटोटाइप डेवलप होने का बिजनेस प्लान एडिक्वेट नहीं हुआ, तो भी आपके प्रोटोटाइप पे वेस्टेज हो जाए। तो बिजनेस प्लान तो आपको बिल्कुल 101% उसके आइडिया के साथ लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने बिजनेस प्लान लेके नहीं चलेंगे, तो उस प्रोटोटाइप को डेवलप करने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। तो जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, अंडर दिस सिचुएशन वी सी दैट कि हमारे कुछ ब्लॉक्स हैं क्रिएटिविटी के। मैं क्रिएटिविटी पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं और आगे चलते जाएंगे, और अभी क्रिएटिविटी पे हम इसलिए फोकस कर रहे हैं कि अगर हम क्रिएटिविटी को समझ जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेज ऑफ इनोवेशन तो अपने आप से हमें मिल जाएगा। तो क्रिएटिविटी के कुछ ब्लॉक्स होते हैं जिनको बोलते हैं परसेप्चुअल, इमोशनल, कल्चरल, एनवायरमेंटल, इंटेलेक्चुअल। ये जो ब्लॉक्स ऑफ क्रिएटिविटी हैं,
इन ब्लॉक्स ऑफ क्रिएटिविटी को अगर हम समझें तो यहां से हमें आइडिया लगेगा कि परसेप्चुअल ब्लॉक क्या कहता है। परसेप्चुअल किसी चीज को देखना सबसे पहली इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी मैं टेक्निकल लैंग्वेज पे ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोगों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी के खुद के अपने हिस्से हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो पहली स्टेज है परसीव। आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे देखते हो, परसीव कैसे करते हो, ये कहलाता है परसेप्चुअल। देखना, पहली नजर, देखना, सुनना और समझना। देखना, सुनना, समझना, ये आपकी जो बॉडी ऑर्गन्स के अंदर सेंसर प्रेजेंट हैं, ये इस पर काम करते हैं। तो आप सबसे पहला जो ब्लॉक आपकी बॉडी के अंदर काम करेगा कि कैसे आप रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे आपको देखते हैं, ये स्टेज पे काम करेगा। सेकंड, जब कभी भी आपके पास में आता है तो आप क्या इमोशनली उस चीज को लेके कैसे डील करना चाहते हैं। इमोशनल ब्लॉक, इमोशनल ब्लॉक हमें बहुत सारी चीजों को प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम बहुत बार देखते हैं कि रोड सेफ्टी को एग्जांपल लेके चलते हैं और हेलमेट को ना पहनने की वजह से बहुत सारे केसेस हो जाते हैं। अब हेलमेट को ना पहनने की वजह से बहुत सारे जो केसेस हो जाते हैं, तो अब हमारे जब इस हेलमेट के डिजाइन सिस्टम पे हम जाएं या इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर हम जाएं, उस वक्त हमारे पास इसका इमोशनल इम्पैक्ट होना चाहिए कि ये वेदर इट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब हम इमोशनल ब्लॉक पे जाके इस पे काम करेंगे, साइकोलॉजिकली इसको काम करेंगे, जाके देख के काम करेंगे कि इससे कितनी परेशानी हो सकती है और इसकी वजह से जब मैं बिजनेस प्लान क्रिएट करूंगा तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना होगा, तो ये जाएगा। सिमिलरली जब हम उस पर काम कर रहे होते हैं, हमारा खुद का इमोशनल ब्लॉक भी काम करता है। इमोशनल ब्लॉक ये देखता है कि जिसको हम सोच रहे हैं वो ठीक होगा, गलत होगा, सही करेगा, गलत करेगा। तो दूसरा हमारा जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है इमोशनल ब्लॉक। तो पहला हो गया देखने का, दूसरा हो गया उसका इमोशनल ब्लॉक, तीस इमोशनल ब्लॉक के बाद आता है कल्चरल ब्लॉक। कल्चरल ब्लॉक भी बड़ा इंटरेस्टिंग ब्लॉक है। अब आप क्रिएटिव होना चाहते हो लेकिन पेरेंट्स ने डांट लगा दी, क्या क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी, अपना बिजनेस करना चाहते हो, ये करना चाहते हो, चुपचाप से पढ़ाई लिखाई करो और एक अच्छी सी नौकरी पाओ, जाके नौकरी करने लग जाओ। ये क्यों कहा उन्होंने, क्यों? क्योंकि एक कल्चर था, वो जॉब करते थे, उनके पेरेंट्स जॉब करते थे, उनके आसपास के एनवायरनमेंट में लोग जॉब करते हैं। तो कल्चरल ब्लॉक्स हमारी क्रिएटिविटी को कई बार डम करते हैं। तो ऐसी चीजें जो हमारे यहाँ होती चली आई हैं, जो भी चीज आ रही है उस चीज की वजह से भी हमारी क्रिएटिविटी पे इम्पैक्ट आता है। तो यदि आप अपने आप में क्रिएटिव नहीं है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि किस ब्लॉक की वजह से। और जनरली ये कल्चरल ब्लॉक तो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है क्योंकि जो हमारे यहाँ नहीं होता वो हम नहीं करते, है ना, ऐसा। तो ये कल्चरल ब्लॉक जो होता है ये बहुत अपने आप में एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। एनवायरमेंट, हमारे आसपास लोग कैसा कर रहे हैं, हमारे आसपास के किस तरीके के लोग हैं। सब लोगों को पता है आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जॉब है, तो चलो आईटी इंडस्ट्री के लिए चलो कंप्यूटर साइंस से स्टडी करते हैं। दिस इज व्हाट एनवायरमेंटल ब्लॉक, जो एनवायरमेंट में हो रहा है। अब हमने अपने बारे में नहीं सोचा कि हम किस में बेस्ट फिट है, नहीं सोचा ना। हमने क्या सोचा, हमने सिर्फ ये सोचा कि व्हाट द अदर्स आर डूइंग, वेयर द इंडस्ट्रीज आर डूइंग गुड, कहाँ पे इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, कहाँ पे बढ़िया हो रहा है। इस सारी की सारी चीजें हमने किस पे सोची, हमने एनवायरमेंट के बेसिस पे सोची। तो एक ब्लॉक आपका क्रिएटिविटी के ऊपर ये भी काम करता है लोग। तो अगर आप वास्तव में क्रिएटिव होना चाहते हो तो ये जो ब्लॉक्स हैं, इन ब्लॉक्स पर आपको फोकस करना पड़ेगा। यू हैव टू सी इनटू दिस, ये ब्लॉक्स कैसे काम कर रहे हैं। तो ऐसे एक होता है इंटेलेक्चुअल और कंसेप्चुअल ब्लॉक। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंटेलेक्चुअल और कंसेप्चुअल। आई डोंट नो, डोंट आस्क मी, ट्राई आस्किंग समवन एल्स। इंटेलेक्चुअल, मुझे नहीं पता, मेरे से मत पूछो, किसी और से पूछ लो। ये क्या है, ये आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने वाले वर्ड्स हैं। इफ somebody is coming to you, don't say I don't know, ये आपका इंटेलेक्ट बताता है, मुझसे मत पूछो, I don't want to do, मुझे नहीं करना, मैं नहीं चाहता। It stops you. If something comes to you, let me try, give me a time, let me understand, मुझे समझने दो, मुझे देखने दो, मुझे ढूंढने दो, मुझे पता करने दो, मुझे देखने दो, कितना समय है तुम्हारे पास इसको जानने का, मैं ट्राई करके देखता हूँ, जैसे अभी कुछ बच्चों ने कहा। तो जब आप इन सेंटेंसेस पे जाते हो तो बिलीव इट, आप क्रिएटिविटी की तरफ मूव कर रहे हो। और जब आप अपने आप को वहीं स्टॉप कर देते हो, आई डोंट नो, खत्म बात, आपने उस दिशा में सोचना शुरू नहीं किया। हो सकता है कि वो आपके लिए गेम चेंजर पॉइंट हो जिस पर आपसे बात की जा रही थी। अब
नेक्स्ट है बेसिकली टाइप ऑफ इनोवेशन, बट एज वी हैव डिस्कस अबाउट द मोर अबाउट द क्रिएटिविटी एंड लुकिंग फॉर द इनोवेशन, I must suggest because you people are here, so I just show you that how your creativity, क्योंकि अगर creativity create हो गई तो innovation की तो next stage अपने आप में पहुंचेगी और जाएगी. तो I show you something on the basis of that आप लोग आराम से अच्छे से आप काम कर सकते हो. तो जैसा कि अभी आपके सर ने भी पूछा था कि फर्दर किस तरीके से हम अपने इनोवेशंस को आगे लेके जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी को कैसे आगे लेके जा सकते हैं. तो उसके लिए मैं आपको कुछ सजेस्ट करूंगा कि आईआईसी जो होती है, इंस्टीट्यूशन इनोवेशन जो काउंसिल है हमारा, उस इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर ये बच्चे अपने आइडियाज पुट कर सकते हैं. तो आप में से किसी ने युक्ति पोर्टल के ऊपर अपने आइडियाज रखे हैं? नहीं, इन बच्चों ने नहीं रखे सर. जो प्रीवियस कॉलेज था ना मेरा, हाँ, वहाँ रखे थे. नहीं, युक्ति पर युक्ति चल रहा था सर. वहाँ युक्ति चल रहा था. तो मैं मिस कर गए हम बच्चों को अभी कि ये बस स्टार्ट हुआ था और थोड़ा सा टाइम जल्दी ज़्यादा ले गया. कोई दिक्कत नहीं है. तो मैं इन बेसिकली इन बच्चों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपने आप में एक युक्ति पोर्टल होता है, और युक्ति पोर्टल पर आप किस तरीके से वाई कैपिटल. सॉरी, ये जो युक्ति पोर्टल आपके पास में है, इस युक्ति पोर्टल पर आप बच्चे यहाँ पर अपनी तरफ से इन्वाइट क्रिएट कर सकते हैं, अपनी रिपोजिटरी में डाल सकते हैं, और रिपोजिटरी में डालने के बाद यहाँ पर आप अपने स्टूडेंट्स को रजिस्टर करा सकते हैं. यहाँ पर आइडिया, इनोवेशन प्रोटोटाइप, बिजनेस मॉडल टाइप, और ये सारी चीजें यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेंज में अवेलेबल होती है. तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है कि अगर ये यहाँ पर सीधा जाएं, स्टूडेंट सीधे जाएं और युक्ति पोर्टल पे अपना लॉगिन करें, और युक्ति इनोवेशन रिपोजिटरी पे जाने के बाद में यहाँ पर रजिस्टर करें, और रजिस्टर करने के बाद में जो भी उनके अपने प्रोजेक्ट के आइडियाज हैं, वो सारे आइडियाज वो यहाँ पर अपना शेयर करें. नेट स्लो है क्या सर? ये ओपन नहीं हुआ अभी? यूके स्लो हो जाते हैं कई बार ना. कई बार. अभी हो सकता है कि कुछ अभी पोर्टल पे कुछ अपडेशन चल रहा होगा. तो ये एक सिंपल सा है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि तो युक्ति पोर्टल पे आप जाएं बच्चे, और जितने भी बच्चों के अपने आइडियाज हैं, उन आइडियाज की यहाँ पे इनोवेशन की रिपोजिटरी को लें, और हर बच्चा, जो भी बच्चा यहाँ पर अवेलेबल है, हर बच्चा से कहें कि आप अपना एक आइडिया, भले ही कैसा भी है वो, पीपीटी की फॉर्म में, किसी फॉर्म में, आप अपने उस आइडिया को रिपोजिटरी पे जाके सबमिट करो. और जब वो वहाँ पे जाके सबमिट करेगा तो आप उस आइडिया को देखेंगे, तब उस आइडिया की आपको बिजनेस वैल्यू समझ में आएगी, और बिजनेस वैल्यू अगर उस आइडिया की होगी, ऑब्वियसली दैट विल बी द नेक्स्ट स्टेज ऑफ दिस. तो स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों डेवलप हो सकती है. लॉट कैन बी टॉक्ड ऑन दिस वन, पर a session can be concluded on the basis of that. तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अब एज ए स्टेप आप सब लोग कोशिश कीजिए, और कोशिश करिए कि सब के सब अपनी पूरी डेली की लाइफ में कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को ऑब्जर्व करें. क्रिएटिविटी ऑब्जर्व करने के बाद में उस क्रिएटिविटी को पेन डाउन करें, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में पेन डाउन करने के बाद में युक्ति पोर्टल पे जाएं, और युक्ति पोर्टल पे जाके जो कुछ भी जैसा भी आपने देखा है उसको वहाँ पर अपलोड करें, और आप सर यहाँ पर अपने इनोवेशन एम्बेसडर्स को लगाएं जो कि एज अ एवेल्युएटर हो, और वो उन बच्चों के आइडियाज़ को चेक करें, क्योंकि इनोवेशन एम्बेसडर ये बच्चे भी बन सकते हैं. इस साल से ही इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल MIC ने ओपन कर दिया है कि 20 बच्चे, 20 स्टूडेंट्स को भी आप इनोवेशन एम्बेसडर बना सकते हैं. तो इनमें से 20 बच्चे आप चुने, और चुनने के बाद जो बच्चे एक्टिव और क्रिएटिव हैं
उन बच्चों को आप इनोवेशन एम्बेसडर बनाएं और वो इनोवेशन एम्बेसडर जो बन जाएंगे, उन इनोवेशन एम्बेसडर के माध्यम से युक्ति पोर्टल पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के प्रोटोटाइप आइडियाज को डेवलप करवाइए और डेवलप करवाने के बाद उनको अपलोड कराइए। तो जब वहां पर वो अपलोड करना शुरू करेंगे तो जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से, MIC की तरफ से, MOE की तरफ से कोई भी फंडिंग स्कीम आएगी तो युक्ति रिपोजिटरी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इमीडिएटली आप युक्ति के जितना भी आपका डेटाबेस है वो सारा का सारा डेटाबेस युक्ति से उठा लेते हैं। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि किसी फंडिंग में बच्चों को अलग से कंपटीशन में अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, सेम डेटाबेस को वहां पर आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो व्हाट आई फील, एक बार में बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चों के लिए, तो इस बार इस सेशन को इतना रखते हैं। और कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी किसी स्टूडेंट की हो तो बिल्कुल फ्री हैं, पूछ सकते हैं। पर एक चीज कंक्लूड जरूर करूंगा, लोगों को जरूर कहूंगा कि जिस जगह पर, जिस स्टेज में आप जहां बैठे हैं, एट वट एवर द पोजिशन यू हैव, इन दैट पर्टिकुलर पोजिशन इज मच इम्पॉर्टेंट। आप इसके बिना रह ही नहीं पाएंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं ले पाएंगे अगर आप अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी और इनोवेशन लेके नहीं आए। इफ यू सी आउटसाइड वर्ल्ड, दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, इफ यू गो आउट, अभी तो आप क्लास के अंदर सेफ हैं, आराम से बैठे हैं, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स आपको आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बाहर आप निकल के जाएंगे देयर इज अ बिग फाइट। जो अच्छा है, बेहतर है, नया है वो काम का है, जो नहीं है वो वापस हट जाता है। तो इससे पहले ही आप अपने आप को तैयार करें और तैयार करके आप अपने आप को लॉन्च करें। With these words, if something else from my side, so I am free. You can have a discussion with me easily. Please, any one of you. अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकता है। सर पंकज सर, अभी तो बच्चों का क्वेश्चन नहीं है कोई भी। ठीक है, ठीक है। बाकी हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट हो दे कैन जस्ट कॉन्टैक्ट टू मी। ठीक, थैंक यू सो मच। So shall I stop the session?